วรคาโรมหันติตโตปวิสสติวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิสุขังภาลังเยนะอาคังคะมานัสสะสังคัสสะปัญจกปิสันติโภคตินัทธารังอุดาอุนาคังคติอาคังวะพันเตof the Kingdom of Thailand to deliver a speech. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor for me to be here in Narayanad, representing the Ministry of Foreign Affairs with His Majesty, on this auspicious day of the Ramadan to build his temples outside of Thailand again in 1995, with His Majesty the King Phumthor the 23rd. His Majesty saw value in engaging with Buddhist temples in countries sharing religious affinity to Thailand in
in order to foster closer ties and people-to-people contacts. Today, this sacred tradition is being continued by His Majesty King Maha Vajiralongkorn Beditratepiyavarang. Thailand shares a very long relationship with India in many ways. The deep ties between our two peoples are based on religion. As Buddhism was born in ancient India, thereafter spreading to many parts of Asia, including Thailand, where it has taken root as a major religion. Therefore, holding the royalty robes offering ceremony in India has always been a symbolic tradition. Today, His Majesty King Maha Vajiralongkorn Beditratepiyavarang has graciously bestowed the royal mantle, Katina robes, to be presented to the Sangha Uttara Vihara. This ceremony bears an even more special meaning, since it is being held for the first time in Maharashtra, which is home to more than 75% of the Buddhist population in India, and especially here in Aurangabad, where hundreds of thousands of Buddhists reside. Moreover, the Buddhist community in Aurangabad, Thai Buddhist devotees, have successfully established training facilities for Buddhist monks here at Uttara Mahavihara. I am pleased to learn that 40 monks have been hosted during the 3-month Vasa this year. Most venerables, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to express my sincere appreciation to Sri Haribau Kisaro Babade and all the honorable guests with your presence at this ceremony. I am grateful to the Most Venerable Vijayanagar Mahathir for kindly accepting and graciously hosting this year's offering ceremony of royal Katina robes. I also wish to thank all the local communities for the arrangements and facilities that have made this ceremony possible. It is my hope that the merit made today will help to further strengthen the bonds of friendship and better understanding between the peoples of our two nations for many years to come. Thank you. मला सांगायला अभिमान वाटतो की ते आमचे मोठे बंधू आहेत, आमच्या घरातले ज्येष्ठ बंधू आहेत आणि आमच्या त्या वहिनी आहेत. तर त्यांनी काही विचार न करता म्हटले की आम्ही 4 महिन्यामध्ये तुम्हाला 5 कोटी रुपये जमा करून देऊ आणि तुम्ही लगेच कामाला सुरुवात करा आणि आम्हाला शेड्यूलसुद्धा द्या, कोणत्या 15 दिवसानंतर तुम्हाला किती पैसे पाहिजे. आणि त्यांना मी जो पण शेड्यूल दिला त्यांनी मला शेड्यूलच्या आधीच आमच्या बँकेमध्ये 50 लाख 1 कोटी अशा प्रकारे पैसे टाकून 4.5 महिन्याच्या आत त्यांच्याकडून पूर्ण 5 कोटीचा निधी आम्हाला उपलब्ध झाला आणि अशा प्रकारे हे ट्रेनिंग सेंटर आपलं पूर्णत्वास आलं. तर या ट्रेनिंग सेंटरसाठी आम्ही फार विचार केला होता की औरंगाबाद व जवळपासच्या परिसरातनं किंवा महाराष्ट्रातनं कुठले दानी आपल्या पुढे येतील आणि आपल्याला याच्यामध्ये मदत करतील. पण आमचा वेटिंग पिरियड जो आहे तो 16 वर्षाचा झाला. पूर्ण 16 वर्ष म्हणजे मी इथं इन्वॉल्ड आहे 2001 पासनं. तर पूर्ण 16 वर्षानंतर एक स्ट्रक्चर आम्ही पूर्णत्वास आणू शकलो. तर असंच बोलताना माझं एका सिनियर भंतेजींशी बोलणं झालं. त्यांना मी म्हटलं की सर खूप भंतेजी फार वेळ लागला मला हे प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी, एकच बिल्डिंग आम्ही करू शकलो. तर ते म्हटले किती वर्ष? मी म्हटलं त्यांना भंतेजी पूर्ण 16 वर्ष लागले. तर ते म्हटले 16 वर्ष काहीच होत नाही, हा खूप मोठं काम झालेलं आहे आणि 16 वर्ष काहीच होत नाही, तुम्ही पुढे आणखी काम करा, कितीही वर्ष लागले तरी हा प्रकल्प ज्या दिशेने चालला आहे त्या दिशेने जाऊ द्या. असं होईल ज्या प्रकारे 4 महिन्यात तुम्हाला 5 कोटी देणारं दाम्पत्य सापडलं, तसंच पुढचे लागणारे 50 कोटी या प्रकल्पाचे जे आहे ते सुद्धा होऊ शकते की तुम्हाला पुढच्या 50 महिन्यामध्येच मिळून जातील. तर त्यांनी एवढी मोठी आशा आम्हाला दिली की मला असं वाटलं की होऊ शकतं ज्या प्रकारे हे 4 महिन्यात घडलं त्या प्रकारे पुढचा प्रकल्प पण जो आहे तो पुढच्या 2-3 वर्षाच्या आतच कदाचित पूर्णत्वास येऊ शकेल. तर या प्रकल्पाचं महत्त्वाचं विषय आम्ही असं ठेवलेला आहे की अजंठाला जाणारे जेवढे पण टुरिस्ट आहेत त्यांना या प्रकल्पाचं भव्य स्वरूप हायवेवरूनच बघायला मिळेल आणि या ठिकाणी 32 फुटाची भगवान बुद्धांची तथागत भगवान बुद्धांची भव्य मूर्ती त्यांना अजंठा रोडवरूनच दिसेल आणि पूर्ण उंची जी आहे ती 45 फुटाची असणार आहे. तर पुढच्या 2 महिन्यामध्ये आपल्याच ठिकाणी इथं मोठा कार्यक्रमसुद्धा आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये देश विदेशातील सर्व भंतेजी येतील, चायनावरून सुद्धा भंतेजी या ठिकाणी येतील सिनियर, आणि त्या सर्वांच्या साक्षीने इथे एक मोठा सोहळा परत राहील ज्या ठिकाणी 45 फूट भव्य मूर्तीचं अनावरण या ठिकाणी केल्या जाईल. आणि हे टुरिस्टकरिता फार सुंदर असं अट्रॅक्शन राहणार, कारण की हायवेवरून
45 फुटाच्या मूर्तीचे दर्शन हे तुम्ही इमॅजिन करू शकता. आत्ता या ठिकाणी काही जास्त मोठ्या स्ट्रक्चर्स नसतानाही आपली एवढी मोठी उपस्थिती आहे. तर जेव्हा या ठिकाणी 120 फुटाचा डोम, 4 मजली मोठी भव्य वास्तू जी या डोंगराला सुद्धा झाकून टाकणार अशा प्रकल्पाचं निर्माण ज्यावेळी होईल त्यावेळी हायवेवरूनच फार मोठं सौंदर्य लोकांना बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरचं बघायला मिळेल. आणि ही फक्त वास्तू नसणार आहे. या ठिकाणी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर सिम्बॉलिझम जे असतं, ज्याच्यामध्ये माझा थोडासा अभ्यास आहे, तर तो सिम्बॉलिझम वापरून आम्ही या बिल्डिंगचं डिझाईन केलेलं आहे. तर त्या सिम्बॉलिझमप्रमाणे ही वास्तू बनणार आहे. तर आपल्याला बुद्ध धर्माचे तत्त्वज्ञान यातून सहज बघितले जाईल. आता भिक्षू संघाचं आगमन झालेलं आहे. पुढील कार्यक्रमासाठी मी माईक हँडओव्हर करतोय. जय भीम. आपल्याला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळतं की अतिशय चांगल्या प्रकारचे कठीण चिवरदानाचे कार्यक्रम होत आहेत. यावर्षी आपल्या या सेंटरमध्ये सन्माननीय डॉक्टर हर्षदीप कांबळे साहेब आणि त्यांच्या सुविद्य धर्मपत्नी ऐशमती रोजना व्हॅनिज कांबळे हे अतिशय श्रद्धासंपन्न परिवार आहे. या परिवारांनी आपल्या पैशाचा योग्य उपयोग केला आणि आपल्याला अपेक्षित असणारं जे काही भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर आहे हे निर्माण करण्यासाठी त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. आणि पहिल्यांदाच या वर्षावासामध्ये साधारणतः जवळपास 70 भिक्षू त्यामध्ये श्रमणूक पण आहेत. यांनी या ठिकाणी ट्रेनिंग घेतलं. तर संपूर्ण विहारामध्ये जेवढेही भिक्षू असतात या सर्व भिक्षूंच्यासाठी विहारासाठी एकच कठीण चिवरदान असते. राहणाऱ्या भंतेजींना बाकीचे चिवर दिले जातात, परंतु विनयाला अनुसरून अशा प्रकारची सिस्टीम असते. आणि तो कठीण चिवरदानाचा कार्यक्रम आज आपल्या विहारामध्ये संपन्न होत आहे. या प्रसंगी खूप मोठमोठे भंतेजी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आमच्या विनंतीला मान देऊन बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणगमनं संपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, तिसरणेन सद्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वापमादेन सम्पादेतब्बा. साधु साधु साधु. प्रणाम करा. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. बसा, सुखपूर्वक बसा. पूज्य बोधिपालोजी महास्तवीर
धम्मपीठावरती विराजमान होत आहे. सर्वांनी साधुवाद द्या. साधू साधू साधू. आपण जसं मराठी भाषा बोलतो तशा प्रकारे भंतेजी थाई भाषा बोलतात आणि त्याहीपेक्षा स्ट्रॉंग भंतेजी इंग्रजी भाषा आहे. इंग्रजी भाषेवरती विशेष असं कमांड आहे भंतेजीचा. आणि म्हणून ज्या लोकांची मातृभाषा इंग्रजी आहे अशा अमेरिका, इंग्लंड, इकडे पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये भंतेजीने जाऊन धम्मदेशना दिलेले आहेत. ऑस्ट्रेलिया, जपान, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, इकडे बर्मा, थायलंड या आणि अशा अनेक देशामध्ये जाऊन धम्माचा भंतेजीने प्रचार केलेला आहे भाषेवरती प्रभुत्व असल्यामुळे. आपल्या या लोकोत्तरा महाविहाराचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. पंजाब बुद्धिस्ट सोसायटी की जी आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी नावाने ओळखल्या जाते, तर त्यांनी पंजाबमध्ये खूप मोठं तक्षशिला नावाचं बुद्धविहार बांधलेलं आहे. त्याचे भंतेजी चेअरमन आहेत. अशा अनेक पदावरती देशविदेशामध्ये भंतेजीने काम केलेलं आहे. परंतु तुरळकच माहिती आपल्यापर्यंत येते. असे अतिशय विद्वान असणारे, धम्माचे जाणकार असणारे आणि अधिकारवाणीने धम्म सांगणारे, ज्यांचा आज कठीण चिवरदानाचा कार्यक्रम संपन्न होतो आहे, भंतेजी या ठिकाणी विराजमान झालेले आहेत. तेव्हा पुढील कार्यक्रमाच्या सूत्रासाठी मी भंतेजीला याचना करतो की आपण सूत्रसंचालन हाती घ्यावं. पूज्य रतनबोधीजी महास्थवीर यांना मी याचना करतो की तुमच्या सर्वांच्या हितासुखासाठी बुद्धवचनाला प्रकाशित करावं, धम्मदेशना द्यावी. चरितवा ब्रह्मचर्यं अलधा यौवनेदनं छिन्नक्रोजावशायन्ति खिन्नमाचेव पल्लवी. महाप्रज्ञवान दिव्य चक्षुष्मान भेषज गुरु, देव और मनुष्यों के शास्ता, अरहंत सम्यक सम भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पूजनीय ऐसा महान भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न सदगृहस्थ उपासक उपासिका, बालक बालिका, श्रेष्ठ ऐसे कल्याणकारी मंगलमय मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए भगवान बुद्ध ने जीवन जीने का अनुपम ऐसा श्रेष्ठ कल्याणकारी मंगलमय मार्ग लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए दिया है. इस कल्याणकारी मंगलमय मार्ग पर चलते हुए अनेक सद्गृहस्थों ने, अनेक सद्गृहिणियों ने, कुमार कुमारिकाओं ने, भिक्षु भिक्षुणियों ने अपना कल्याण मंगल साधते हुए निर्वाण का, मुक्ति का साक्षात्कार किया है. धर्म हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाता है. धर्म हमें सदाचार, संयम, शिष्टाचार, नम्रता सिखाता है. धर्म हमें प्रत्यक्ष अनुभव करना सिखाता है, साक्षात्कार करना सिखाता है. जानना और मानना बहुत बड़ा अंतर है. जब हम ठीक तरह से वह जानने लग जाते हैं और जानकर अनुभव करने लग जाते हैं, तब भली भांति धर्म और अधिक से अधिक समझ में आता है. इस पावन भूमि में 3 महीने तक लगातार वर्षावास के काल में
विनय, भिक्षुओं के लिए जो भिक्षुओं के नियम है, शिष्टाचार है, सूत्र, अध्ययन और उसके साथ साथ यहाँ विपस्सना ध्यान की ध्यान साधना भी यहाँ पर सिखाई गई। जब कोई यहाँ पर वैसे साधक आते हैं तो तुरंत उन्हें उस ध्यान की तरंग उस वातावरण में उसे खींच लेती है और वह तुरंत महसूस कर लेता है अपने शरीर में, जान लेता है कि यहाँ का वातावरण कैसा है, क्योंकि उसका मन भी उतना ही प्रसन्न, प्रमुदित होता है। तो एक संक्षिप्त में ज़्यादा न कहते हुए एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी वाणी यहाँ पर समाप्त करूँगा, क्योंकि समय काल ध्यान को रखते हुए ही वह चर्चा की जाती है। तो भली भांति हमें शुद्ध धर्म जानने के लिए, शुद्ध धर्म अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर प्रयत्नशील प्रयासरत होना चाहिए। भली भांति भगवान बुद्ध ने अनेक उदाहरण देकर अच्छी तरह से समझाया है, सद्गृहस्थों के लिए भी, सद्गृहिणियों के लिए भी, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भी। तो कुछ समय पूर्व और आज भी जैसा कबूतर वह जहाँ उन्हें जगह मिलती है वही अपने अंडे देते हैं और उनके बच्चों का जन्म वह जमीन पर या कहीं जगह मिल जाती है वहीं पे हो जाता है। तो कबूतरों ने विचार किया, सोचा कि भाई हमारे बच्चों को यह जंगली बिलोटे या सांप हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है, खा जाते हैं वह जंगली जीव, और हमें घोंसला बनाना नहीं आता है, हमें वह घोंसला बनाना नहीं आता है। तो हमें घोंसला बनाने की विधि सीखनी चाहिए कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। तो एक छोटी सी गौरैया, वह चिड़िया, बैया पंछी बहुत सुंदर अच्छा घोंसला बनाता है। उसमें प्रकाश लाइट का वह उजाले के लिए मिट्टी रखता है। ऐसा वह गौरैया, ऐसी वह बैया पंछी, वह कबूतर विचार करते हैं कि हम उन्हीं से सीखेंगे घोंसला बनाने की विधि। तो कबूतर इकट्ठा होकर वहाँ गौरैया के पास, बैया के पास चले जाते हैं और कहते कि बहन, क्या हमें घोंसला बनाना सिखाओगी? आप बहुत अच्छी तरह से घोंसला बनाती हो, तो हमें वहाँ घोंसला बनाने की विधि सिखाओ। गौरैया कहती है कि हाँ, अगर आप सीखना चाहो तो मैं सिखाऊंगी। अगर आप घोंसला बनाने की विधि सीखना चाहो तो मैं सिखाऊंगी। कबूतरों ने कहा कि हाँ बहन, हम तो घोंसला बनाने के लिए, सीखने के लिए आए हैं, तो बहन हमें बताओ घोंसला कैसे बनाया जाता है। कहा कि ठीक है, बताऊंगी मैं। तो वहाँ तिनके लाकर, घास लाकर उसने घोंसला बनाने की विधि, घोंसला बनाने की कला वह बताने लगी। अब कबूतरों को चुपचाप शांत तरीके से देखना चाहिए ना कि यह गौरैया कैसे, मतलब वह घास बुनाई कर रही है, घोंसला कैसे बना रही है, वह हमें देखना चाहिए। लेकिन जैसा ही थोड़ा सा ही बन पाया था,
थोड़ा ही बन पाया था तो कबूतर बीच में ही बोल पड़े, अरे गौरैया बहन, हम तो घोंसला बनाना जानते हैं, हमने सीख लिया। तो गौरैया कहती है कि ठीक है, अगर आप जानते हो तो जाओ बना लो अपना घोंसला। अब कबूतर वहां से चले तो गए। अब घोंसला बनाने की विधि उन्होंने पूरी तरह से नहीं सीखी थी, नहीं जान पाए थे। तो लकड़ी ले आते हैं, उल्टी सीधी रखते हैं कि अरे भाई, हमें तो घोंसला बनाना ही नहीं आता है, हमने वहां कला अच्छी तरह से नहीं सीखी। अब क्या करें? फिर दोबारा अब गौरैया के पास जाना चाहिए। पता नहीं वो हमें बता पाएगी या नहीं बता पाएगी। दोबारा फिर गए कुछ दिनों के उपरांत, फिर कहा कि बहन, हमें वहां घोंसला बनाने की विधि सिखाओ, बताओ। कहा कि ठीक है, बताती हूँ। फिर दोबारा वह इस प्रकार से बताने लगी, बुनकर तैयार करके। फिर वह कबूतर बीच में ही बोल पड़े कि अरे बहन, हम तो इतना जानते ही है। तो कहने का तात्पर्य सील, समाधि, प्रज्ञा जब तक हम ठीक तरह से नहीं जानते, जब तक हम सील का ठीक तरह से पालन अनुपालन नहीं करते, तब तक हमें सील का महत्व समझ में नहीं आता, समाधि विपස්සना का महत्व समझ में नहीं आता। लेकिन जब विपස්සना अनुपස්සना करना शुरू कर देते हैं, जानना शुरू कर देते हैं और जानने के साथ साथ करना शुरू कर देते हैं, तब जाकर कल्याण होता है, तब जाकर मंगल होता है। तीसरी बार फिर वह गए। अब दूसरी बार वह घोंसला नहीं बना पाए और तीसरी बार कहा कि अब भाई, हमें तो घोंसला बनाने की विधि आती नहीं है और हम सीख भी नहीं पाए, और कबूतर हमें, वह गौरैया हमें सिखा पाएगी या नहीं सिखा पाएगी। गए वहां पर कबूतर, गौरैया बहन से कहते कि बहन, हमें एक बार और घोंसला बनाने की विधि सिखाओ। तब गौरैया उन्हें फटकार लगाते हुए, डांट लगाते हुए कहती है, क्या रे, तुम तो जानते भी नहीं हो और मानते भी नहीं हो, तुम्हें घोंसला बनाने की विधि मालूम नहीं है, तुम्हें घोंसला बनाने की विधि आती नहीं है, और फिर भी कहते हुए कि हम जानते हैं, हमें आता है। तो यहां पर सदगृहस्थों के लिए भी, भिक्षुओं के लिए भी भगवान बुद्ध ने यह मनुष्य का जीवन इतना श्रेष्ठ कल्याणकारी मिला है, तो इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए और इस सील, समाधि, प्रज्ञा को जानने की विधि हमें किस प्रकार से सीखनी चाहिए, यह प्रत्यक्ष अनुभव करने के उपरांत ही वह बात समझ में आती है। जानने में और मानने में बड़ा अंतर है कि भाई विनय ऐसा होता है, विनय नियमों का पालन ऐसा करना होता है, केवल हम उद्घोष करते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जब तक अनुभव नहीं करते, प्रैक्टिकली उन नियमों का, शिष्टाचारों का, सदाचारों का पालन अनुपालन नहीं करते हैं, तब तक हमारा यह जीवन भी निरर्थक है। यह कल्याणकारी वातावरण और अधिक से अधिक बढ़ता रहे, यहां पर और अधिक से अधिक मंगल मैत्री की तरंग विस्फुटित होते रहे, प्रसारित होते रहे, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिले, औरों का भी कल्याण हो, औरों का भी मंगल हो, औरों की भी स्वस्थ मुक्ति हो। ऐसा प्रयास करने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहे, प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। तो यहाँ पर इतना ही कहते हुए मैं यह चर्चा समाप्त करता हूँ। सबका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, स्वस्थ मुक्ति हो, दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो, मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण। लोकुत्तराच्या भूमीमध्ये ज्या भिक्खू संघांनी
3 महिन्याचा वंशवास संपन्न केलेला आहे. त्यांचा सन्मान म्हणून थायलंडचे जे राजे आहेत किंवा थायलंडचे जे काही उपासक उपासिका आहेत, या सर्वांनी कठीण चीवर दान देऊन भिक्खू संघाचा सन्मान केलेला आहे. ही आपल्यासाठी अत्यंत गौरवनीय बाब आहे आणि वास्तविक पाहता ही अत्यंत ऐतिहासिक घटना या माध्यमाने घडलेली आहे. 2 देशाचे धार्मिक सांस्कृतिक संबंध दृढ झालेले आहेत. अशोकाच्या काळामध्ये, सम्राट अशोकाच्या काळामध्ये जे काही प्रसंग ऐतिहासिक घटना घडलेल्या आहेत, 2 देशाचे संबंध दृढ झाले आणि त्यामध्ये बुद्ध धर्माचा प्रसार झाला. तर अशा भिक्खू संघाचा सन्मान थायलंडचे उपासक उपासिका, थायलंडचे राजे, थायलंडचे भिक्खू संघ या सर्वांनी एक मातृभूमीचा आदर, बुद्धभूमीचा आदर, भारत देशाचा आदर, बुद्ध धम्म संघाचा आदर म्हणून त्यांनी भिक्खू संघाला चीवरदान देऊन, कठीण चीवरदान देऊन मोठा सन्मान केलेला आहे. तशाच पद्धतीचा एक भावना मनात ठेवून समता सैनिक दलाचे जे श्रद्धावान उपासक उपासिका आहेत, ते सुद्धा आजच्या या धम्मपीठावर जमलेले भिक्खुगण त्यांचा सुद्धा ते सलामी देऊन सन्मान करीत आहेत. पाठीमागे उपासक उभे राहिले. माननीय भिक्खु संघ को सामने एक समता दल की तरफ से मान वंदना दी जाती है. जय भीम स्लोर देगा. जय भीम स्लोर. जय भीम. जय भीम. जय भीम. प्राट वस्त्रम. प्राट साधन. प्राट तीनों 3 बार दाहिने चलेगा. दाहिने पुट. प्राट सामने से चल. पूजनीय भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ और उपस्थित दायक एवं दायिका, आज का दिन जो लोकोत्तरा महाविहारा में जो कठिना का जो दाना का उत्सव में यही यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. आज जो लोकोत्तरा का मोंग ट्रेनिंग सेंटर का जो यहाँ में बहुत सुंदर से जो बनाया गया है और जो भगवान बुद्ध का जो धम्मा है, एक जो मुक्ति का मार्ग है, वो मुक्ति को पाने के लिए ना किसी का ईश्वर का कृपा होना चाहिए, अपना कर्म से, अपना मेहनत से वो मुक्ति पा सकता है. वो मुक्ति पाने के लिए अपना मेहनत जो है, अपना कर्म जो है, वो हम लोग अपने आप को जो धम्मा का वाणी है उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और अच्छी तरह से उसको पालन करना पड़ेगा. और आज वो धम्मा जो है जनहित तक पहुंचने के लिए ये धम्मा जो है अधिकतर जो भिक्षु भिक्षुनी लोग उसको मंदिर में बैठ करके अध्ययन करते हैं. उसका बाद में जो
दायिका को जो वाणी जो भगवान बुद्ध का पहुंचाता है, वो पहुंचाने के लिए पहले अपने आप को अच्छी तरह से शिक्षित होना पड़ेगा, अपने आप को पहले अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, तभी दूसरों को हम लोग बांट सकेगा, उसका वाणी जो है जन जन तक पहुंचाने सकेगा। इसलिए दाना धम्म का उसमें हम इतना चर्चा नहीं करके जो मोंग ट्रेनिंग सेंटर का उसके बारे में हम मेरा तरफ से कुछ बोलना चाहता हूँ। जो यहाँ देखा गया कि जो मोंग ट्रेनिंग सेंटर अभी 3 महीना का कोर्स ख़त्म हो गया और 1 साल का वो करने जा रहा है दिसंबर से। उसमें जो अरुणाचल का और नॉर्थ ईस्ट में वैसे बहुत माने थेरावादा बुद्धिस्ट है, वहाँ में भी जैसे पहले जो मोनेस्टिक सिस्टम जो है वो पहले जैसे नहीं रहा, इसलिए उसका जो प्रोपगेशन जो है उसमें जो वाणी जो है जन जन तक पहुँचने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, क्योंकि वहाँ में एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। इसलिए हम इसमें यहाँ मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो मोंग ट्रेनिंग सेंटर जो है, जो उनका सिलेबस जो है एक लॉन्ग कोर्स एक शॉर्ट कोर्स है, वो इसे करने से ज़्यादा होगा अधिकतर, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में जो भिक्षु संघ जो है वसावास जो में उसमें बहुत कठिन से पालन करते हैं और वसावास के अंदर में एक इतना दूर में भी नहीं जाता है, 6 दिन के अंदर जा कर के वापस आना पड़ता है। उसके वजह से उन लोग के लिए जो लॉन्ग कोर्स जो शॉर्ट कोर्स जो है जैसे 6 महीना हो 7 महीना हो, उन लोग के लिए मैंने वो है, और बाकी दूसरों के लिए अगर 1 साल 2 साल 3 साल कोर्स वो भी कर सकता है। अगर शॉर्ट कोर्स में अगर 6 महीना जैसे करने से वहाँ जो अरुणाचल में हो नॉर्थ ईस्ट में जो बुद्धिस्ट थेरावादा बुद्धिस्ट जो मोंग लोग है वो लोग आकर के यहाँ में वो ट्रेनिंग ले सकता है। वो ट्रेनिंग ले करके हम लोग जो यहाँ का जो महाराष्ट्र में जितना आप लोग है हम लोग सब मिल करके एक धम्मा का वाणी जो है कोना कोना तक हम लोग पहुँचाने सकेगा। इसलिए बिना ट्रेनिंग से तो हम लोग को नहीं हो पा रहा है, और अगर ट्रेनिंग नहीं होने से जो हम लोग जितना में जो एफिशिएंसी होना चाहिए इतना नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से जो ट्रेनिंग का वैसे तो बहुत ज़रूरी है। और उसका बाद जो यहाँ का जो मोंग ट्रेनिंग सेंटर हुआ उसका जो ख़ास करके जो नॉर्थ ईस्ट में भी अधिकतर जो है वहाँ में जो ट्रेडिशनल जो बुद्धिस्ट है जो पहले से है उसको पहले हम लोग जो पूजा पाठ में वही में सीमित रह गया, और जो धम्मा का जो अच्छी तरह से वो डे टू डे लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करना वो नहीं हो पा करके एक पूजा पाठ के रूप में रह गया। उसी को मैंने अभी डे टू डे लाइफ में कैसे मैंने वो धम्मा को जो उपयोग करना है उसी को लाने के लिए उसको वो करने के लिए अभी जो है मोंग खास करके जो भांति लोग को मैंने शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होने के वजह से होने से उसमें जन जन तक हम लोग को पहुँचाने सकेगा। इसलिए लोकोत्तरा महावीरा मोंग ट्रेनिंग सेंटर जो भांति जो डायरेक्टर है जो है उन लोग से मेरा ये अनुरोध है कि अगर ये होने से सभी तरह से बहुत जगह से भांति लोग आने सकेगा। उस दिन हम लोग को वहाँ में एक आसाम में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ में भी 10-15 भांति लोग इकट्ठा हुआ। वो लोग भी बहुत उत्सुक है यहाँ में ट्रेनिंग सेंटर में आने के लिए। फिर भी उन लोग के लिए एक समस्या है कि अगर 1 साल का कोर्स होने से उन लोग के लिए आने में तकलीफ हो जाता है। अगर 5, 6, 7 महीना होने से तो वो लोग आ सकेगा। अगर उन लोग को नया भर्ती हुआ नया इतना वो कुछ ट्रेनिंग नहीं पाया, इसलिए उन लोग को भी अगर शिक्षित दिया जाए वहाँ में जो थ्रू मैंने मोंग ट्रेनिंग सेंटर यहीं से पूरा संपूर्ण इंडिया में वो बुद्ध धम्म संघ का प्रचार कर सकेगा और मैंने सभी मानव का जो कल्याण कर सकेगा। वैसे उम्मीद करके मेरा भाषण जो है यही में समाप्त करता हूँ। सभी मंगल हो, सुखी हो। डॉक्टर पूज्य भदंत डॉक्टर उपगुप्ताजी महास्तवीर आपणास धम्मदेश देत आहेत। तथागत
महाकारुणिक भगवान बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आदरणीय पूज्य भदंत यनानंद महास्तवीर, भदंत बोधीपालोजी, जे की आमच्या भिक्खू संघाचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीचे अध्यक्ष आणि लोकोत्तर महाविद्यालयाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि या सर्व कार्यक्रमाचे प्रकार बोधीपालो महास्तवीर, डॉक्टर ज्ञानदीप महास्तवीर, जे आमच्या ऑल इंडिया भिक्खू संघाचे कोषाध्यक्ष आहेत, जे बनते आता अपने समोर बोले रत्नजीत थेरो, जो कि अरुणाचल से पधारे हुए हैं, जिनका थोड़ा सा वक्त भी हम सुन सके। चंद्रिमा भंते जी, जो कि लखनऊ से पधारे हुए हैं हमारे बीच, जो कि इस मायावती गवर्नमेंट में जो राज्य मंत्री के पद पर स्थित थे, ऐसे मंत्री जी हमारे बीच में आज पधारे हुए बनते चंद्रिमा जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बनते आनंद मोदी, बनते ज्ञान रक्षित, बनते काश्यप जी, सर्व सन्माननीय ब्रह्म मंचावर उपस्थित आदरणीय भिक्खू संघ, भिक्षुणी संघ आणि या कार्यक्रमाचे वाहक डॉक्टर हर्षदीप कांबळेजी, मिसेस कांबळेजी, थायलंडवरून आलेले सर्व शिष्टमंडळ, औरंगाबाद शहरातील सर्व सन्माननीय उपासक उपासिका, ज्यांच्या बलावर मागचंही प्रशिक्षण शिबिर यशस्वी संपन्न झालं आणि आता कार्यक्रमही होत आहे, असे औरंगाबाद शहरातील सर्व सुज्ञ दानदाते श्रद्धावान उपासक उपासिका, मागच्या वेळेला वर्षावासाच्या कालावधीमध्ये प्रथमच भिक्षूंसाठीचं प्रशिक्षण सेंटर सुरुवात करून भिक्खू संघाला दिशा देण्याचं काम या भूमीने केलेलं आहे। लोकोत्तराच्या ज्याची आवश्यकता होती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दीक्षेनंतर 62 वर्षानंतर का होईना मानवानं ते उभं राहिलंय आणि हळूहळू पुढे पुढे आज यावर्षी 60-70 भिक्षूंनी त्याचा लाभ घेतला, भविष्यामध्ये 100 भिक्खू लाभ घेतील आणि एक वेळ असा येईल की हजारो भिक्खू इथे लाभ घेतील, अशी आमची अपेक्षा आहे। आणि त्या अपेक्षेनं ते काम सुरू झालेलं आहे। ते एक आव्हान असतं, एक चॅलेंज असतं। या ठिकाणी त्याग, श्रद्धा, निष्ठा, दान, सर्व प्रकारच्या 10 पारामिता एकत्र करून हे काम करायचं असतं। 10 पारामिताचं बल एकवटून आपण उभं राहायचं असतं। उशीर लागणार आहे, परंतु निश्चितपणाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे वचन आहे, बाबासाहेबांनी जो संकल्प केला होता, तो संकल्प भविष्यामध्ये पूर्ण होणार आहे। आपण आशावादी आहोत। अडचणी पुष्कळ आहेत, भौतिक अडचणी वेगळ्या आहेत, मानसिक अडचणी वेगळ्या आहेत। भौतिक अडचणी शासन स्तरावर दानदात्यांच्या बलावर आपण पूर्ण करू, परंतु मानसिक अडचणी ज्या आहेत, आम्हा उपासकांची मन सुदृढ करणं, मानसिकता तयार करणं, मनोबल तयार करणं, आमच्यामध्ये धर्माच्या प्रती धर्म किती बलवान आहे, बुद्ध किती बलवान आहे, संघ किती मार्गदर्शक आहे, याची अनुभूती
याविषयीचं ज्ञान उपासकांना करून देणं आज काळाची गरज आहे. जेव्हा उपासकांना याचं ज्ञान होईल हळूहळू भविष्यामध्ये की बुद्ध धम्माशिवाय आपला भविष्यात कर्णोपाय नाही. भविष्यामध्ये येणाऱ्या जनरेशनचं, येणाऱ्या पिढीचं चांगल्या पद्धतीनं नैतिक बल उभं करायचं असेल, चांगल्या पद्धतीनं मानसिक बल तयार करायचं असेल, चांगला उपासक, चांगला नागरिक, चांगला कुटुंब प्रमुख जर आपल्याला निर्माण करायचं असेल तर अशा प्रकारे धम्माचे संस्कार केंद्र होणं अत्यंत आवश्यक आहे. मागच्या वेळेला आपण वर्षाभासाच्या कालावधीमध्ये पाहिलं की औरंगाबाद शहरामध्ये भिक्खू संघाला प्रत्येक रविवारी भोजन दान देण्यासाठी भरभरून उपासक पुढे आले. मला वाटतं प्रत्येक महिन्यातला 4 रविवार आणि 4×12 रविवार तर 12च होते, परंतु वार्ड औरंगाबाद मध्ये आमच्याकडे जास्त होते. मला वाटतं वर्ष जर ठरवलं एक रविवार तर 2 वर्षानंतर एका वार्डाचा नंबर येऊ शकते औरंगाबाद. एवढे वार्ड शिल्लक राहून गेले. बऱ्याच वार्डाची इच्छा होती, परंतु बांधवांनो तुमची इच्छा जरूर पूर्ण होईल. या वर्षाभासात नाही झाली तर पुढच्या वर्षाभासात का होईना तुमचा रविवारचा भोजन दानाचा आणि भिक्खू संघाच्या स्वागताचा हा क्रम निश्चित येईल. आणि असं जर तुमचं श्रद्धाबल वाढत गेलं, बघा श्रद्धेचं लक्षण काय आहे असं जर कोणी सहज प्रश्न विचारला तर आपल्याकडे त्याचं उत्तरही असणं आवश्यक आहे. श्रद्धेचं लक्षण प्रसन्न होणे हे श्रद्धेचं लक्षण आहे. बुद्ध म्हटल्याबरोबर, धम्म म्हटल्याबरोबर, संघ म्हटल्याबरोबर सर्वात प्रथम आपल्यामध्ये प्रसन्नता आली पाहिजे, हे त्याचं लक्षण आहे. नाराजी, ना खुशी, ना उमेद हे मनामध्ये येणं हे श्रद्धेचं लक्षण नाही. एकदम प्रसन्न होणं, देण्या घेण्याचा विषय नंतर, पण कमीत कमी बुद्ध धम्म संघ म्हटल्याबरोबर प्रसन्नता आली पाहिजे. 100 रुपये देता की 1 लाख रुपये देता हा विषय गौण आहे. पैशाने श्रद्धा मोजली जात नाही, परंतु तुम्ही अगोदर तुमच्यामध्ये खुशी निर्माण करा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं धम्माचं कार्य म्हटल्याबरोबर प्रसन्नता आहे. ही प्रसन्नता तुमच्या श्रद्धेची ओळख सांगून जाते.